Bismillahirrahmanirrahim. Today we go on for inheritance, more on inheritance. We talked about inheritance. Now, today we deal more about inheritance, okay? But firstly, we said in inheritance, if a class has three areas, one is the private area, second is the protected, and third one is the public area. Now, private is always inherited, right? Private is never inherited, not always inherited. So अपने दिमाग open रखो. The question is coming to you. Okay. ये वाली bulb on करो. This one. So we are saying private is never inherited, because if private would be inherited, then why would this is a private? It breaks the privacy. It breaks the privacy if you are going to inherit it, because we are saying that it will be accessed only by within the class. Its scope is only within the class. That means we need to have some kind of a methods which can access it. So if you want to access private, you need to have something in a public which can access the private. Okay, and it won't be inherited. In inheritance, private will never be inherited. Simple as it is. So if you don't want to inherit the class itself, what will you do? I say nothing should be inherited. No. Yeah, that's also okay if you're saying, but you have to give na first person you are putting something in a private. लेकिन प्राइवेट में रखने का मकसद क्या है? अगर आप मेथड नहीं रख रहे हो पब्लिक में, देखिए प्राइवेट में आपने सारी चीजें रखी, आर दे एक्सेसिबल? They can be only accessible if you put something in a public. So you have to, yes, you have to access this, then you can access this. So that means if you are giving these methods will be accessible. So ये तो inherit हो जाएंगे ना ये methods. अब अगर ये method रखोगे नहीं आप, ये method आप रखोगे प्राइवेट में, तो फिर तो ये inaccessible बन जाएगा, क्लास तो फजूल है, तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, है ना? ये तो ऐसा हो गया कि हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो गई. आप क्या करोगे? ठीक है, तो कमरा तो खोलना है ना if you want to access it, वरना फजूल है ना. या आपने पिगी बैंक ऐसा रखा जो खुलता ही नहीं है कभी, तो पैसे उसमें बंद गए होंगे, खेल खत्म. अब क्या करोगे इसका? ठीक है, खुलने तो चाहिए ना. सो हिडन है लेकिन की तो चाहिए. ठीक है, अगर आपने किया पब्लिक में रखी, वो तो इनहेरिट हो जाएगी. मैं कहता हूँ क्लास इनहेरिट नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? फाइनल कीवर्ड हमारे पास, फाइनल लगाओ क्लास के साथ. ठीक है, क्लास ABC फाइनल. So it won't be inherited at all. So you can't extend it. I mean, मेरा जावा थोड़ा सा हो रहा है. Extend means Java. ठीक है. Even कल मैं super बता रहा था, as a Java keyword, not the C++. ठीक है. वहाँ पे हम super keyword होता है. Here we don't have a super keyword. Okay. Here we have initialization list. हाँ, the way initialization list is, we do that way the things. ठीक है ना? एक तो ये बात होगी. दूसरी बात अगर प्राइवेट है, प्राइवेट और पब्लिक, इसमें प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है? आपने वो वीडियो नहीं देखा? फिर वीडियो देखना चाहिए था, रिकॉर्ड जो किया था हमने. क्या प्रोटेक्टेड इनहेरिट होगा पहले? हाँ होगा. प्रोटेक्टेड इज सेम एज प्राइवेट. ओनली डिफरेंस इज वी आर सेइंग कि नहीं भाई साहब, अपने चाइल्ड क्लास है, अपना बच्चा है, इसको तो देना है. अपने बच्चे को तो दे दो चीजें, दूसरों को मत दो, लेकिन अपने बच्चे को तो दे दो. यानी कि जो आपका सब क्लास है उसको तो दे दो. So protected can be inherited. Okay, inherit means कि अपने बच्चों को. नॉन सब क्लासेस में एक्सेसिबल तो होगा ही नहीं कभी, लेकिन सब क्लासेस जो आपके हैं वहां पे वो हो जाएगा. ठीक है, तो किधर जाएगा बोलो? Protected will always go to protected, or there is some. Can protected go to public? It can't be. क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड पब्लिक में गया, फिर प्रोटेक्टेड होने का फायदा क्या? वो तो पब्लिक में गया. क्या प्रोटेक्टेड में जा सकता है? हाँ जाएगा. क्या प्रोटेक्टेड प्राइवेट में जा सकता है? हाँ जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि आपकी इनहेरिटेंस पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या. सो इफ आई से क्लास फॉर एग्जांपल A colon, this is the way we extend, I mean inherit. Okay, मैं इनको प्रपोज कर रहा था कि C++ बंद ही कर दो. समीर गोल को भी मैंने कहा
ये जो है ना सी प्लस प्लस को बंद ही होना चाहिए, बिकॉज वी शुड अप्लाई जावा नाउ, ठीक है। सो सी, सी प्लस प्लस, आई थिंक दीज आर रिडंडेंट लैंग्वेजेस नाउ। सी की जगह पाइथन लगा दो, ठीक है, तभी सी जरूरत लगती है कभी। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप जावा पढ़ोगे इन द बिगनिंग, अगर आप जावा पढ़ोगे इन द बिगनिंग इस सी प्लस की जगह, तो जहां जावा पढ़ना है वहां आप पूरा एडवांस जावा पढ़ लो, जेडीबीसी, स्प्रिंग क्लासेस, स्प्रिंग वगैरह वो लगा लो, यानी कि ईजेबी वगैरह लगा लो। तो उससे क्या हो जाएगा, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो उसमें। अब यहाँ बच्चा बीसीए करता है, वो जावा पढ़ता है, उसको उसके मतलब प्रोजेक्ट बनाओ, कहते हैं वो कैसे बनाओ, क्योंकि उसने खाली कोर जावा पढ़ा होता है ना। सो अभी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, आगे लैंग्वेजेस बहुत सारी है, सो बेटर इज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। होपफुली दे विल, क्योंकि इनको सिलेबस सब खुद बनाना है, जो नया है ना ये नेप, उसमें सिलेबस सिर्फ खुद फ्रेम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स देयर इज अ चांस स्कोप फॉर दीज थिंग्स। ओके, नाउ देखिए आप, क्लास ए अगर मैं नहीं लिखता तो ये प्राइवेट है, ओके, प्राइवेट। ये किसी क्लास से, बेस क्लास, क्लास का नाम क्या है, बेस क्लास। So it is, that means it is class A is inheriting stuff from the base class. So class A is a child of, we could also even sometimes say class A is a base class. Class A is a, sometimes we, because inheritance में ऐसे करते हैं, पर्सन क्लास है, क्या करते हैं पर्सन, क्योंकि देखिए इनहेरिटेंस में ऐसे नहीं होता कि क्लास बेस क्लास है, फिर ये असल में ऐसे नहीं होता। फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे वगैरह, वर्चुअल फंक्शंस वगैरह, वो देखोगे आप। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है कॉलेज का, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, लाइब्रेरी में बुक्स हैं वगैरह, बहुत सारी चीजें, लाइब्रेरी वगैरह, फिलहाल इंसानों की बात करते हैं, ठीक है। बहुत डिपार्टमेंट्स में अलग अलग किस्म के पोजीशंस पे इंसान है। सब इंसानों के पास फोन नंबर है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस, और हजारों चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। अब मैं फैकल्टी हूँ, मेरा अलग है कुछ अपना, जैसे मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, उसमें मैं क्या पढ़ाता हूँ वगैरह, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, वो चीजें। अब जो नॉन टीचिंग है उसमें भी उसका स्किल आ जाएगा वगैरह, स्टूडेंट में रोल नंबर आ जाएगा, जो कि टीचर को नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीजें जो है वो कॉमन है। देखिए यहाँ पे ये चीजें जो है, अगर मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, फैकल्टी है, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट है, मेरे पास नॉन टीचिंग फैकल्टी है, मेरे पास गेस्ट लेक्चर्स है, ओके, एंड मेनी मोर, दे ऑल हैव दैट कॉमन पार्ट, जो कि 20-30 का 20-30 चीजें हैं वो कॉमन है। मैं कहता हूँ भाई साहब वो आप ये इसमें रखो, इस क्लास में जो कॉमन है वो इनहेरिट करो फिर। तो कोड रियूज जो आप कहते हो, कोड रियूज हो जाएगा, है ना, वो फीचर आ जाएगा इसमें, ठीक। तो जो ये क्लास है इसका नाम मैं रख सकता हूं पर्सन, क्या रख सकता हूं। अब हम फिर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं, फिर उसमें हम बोलते हैं कि भाई मेरे को ये पर्सन क्लास है ना प्योरली इनहेरिटेंस के लिए, तो इसमें वो सारी कॉमन कॉमन चीजें हैं। और यहाँ पे जो अपना इसको है, पर्टिनेंट टू दिस फैकल्टी, पर्टिनेंट टू स्टूडेंट, जैसे रोल नंबर जो कि टीचर को नहीं है, सैलरी जो कि स्टूडेंट को नहीं है, पर्टिनेंट टू द नॉन टीचिंग फैकल्टी, फर्ज में पियोन है, ये चाय बनाता है, ये गेट कीपर है, इसका अपने स्किल सेट होंगे ना अलग अलग चीजें, लेकिन उनके पास भी एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो सारी चीजें होंगी, एंड दोज थिंग्स विल बी पुट इनटू वन क्लास कॉल्ड पर्सन। बाद में हम उसको एडवांस कर देंगे, भाई पर्सन शुड नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, आई डोंट वांट टू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्सन क्लास, इट इज प्योरली फॉर इनहेरिटेंस, दैट्स व्हाट वी रीड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड ऑल लेटर ऑन। लेकिन अभी जो है हम इसको जो रिलेशनशिप बोलते हैं कि ये कैसे है इनहेरिटेंस की, हम कहते हैं फैकल्टी इज अ पर्सन। यहां आपको ये समझ नहीं आएगा ए इज अ बेस, वो समझ नहीं आया, यहाँ पे आपको सीधे आएगा समझ। फैकल्टी इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन, नॉन टीचिंग इज अ पर्सन। सो ऐसे पढ़ा जाता है इसको, इनहेरिटेंस को, ठीक है। और डायग्राम नीचे से दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है। सो जीएल जो है गेस्ट लेक्चर, ही इज अ पर्सन। तो जो इनहेरिटेंस है उसमें वो चीजें हम रखते हैं जो कि कॉमन है, तो मुझे ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। सो एक ही जगह लिखने की जरूरत है। कल जाके वक्त तो नहीं नहीं, अब मेरे को आधार कार्ड भी ना, पैन कार्ड भी चाहिए, अब मुझे हजारों जगह चेंज नहीं करना, एक ही जगह करना है चेंज, तो उसमें बड़े फायदे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस करते हैं, ओके। अब हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हम कहते थे कि अगर प्राइवेट है वो इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस खुद प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, या प्रोटेक्टेड हो सकती है।
ये कल बता चुका हूं मैं। अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो बोलो कहां जाएगा, प्रोटेक्टेड जाएगा, प्रोटेक्ट जाएगा प्रोटेक्टेड में, और पब्लिक जाएगा, दोनों प्रोटेक्ट में जाएंगे। अगर पब्लिक इनहेरिटेंस है, प्रोटेक्टेड अपना प्रोटेक्टेड में, पब्लिक पब्लिक में जाएगा। और अगर प्राइवेट है तो बेस क्लास का प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों जाएंगे प्राइवेट में। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सर बेस क्लास प्राइवेट नहीं होगा, प्राइवेट नहीं हो सकता ना, मैं कह रहा हूँ बेस क्लास का प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, क्या तीनों जाएंगे उसके प्राइवेट में? नहीं, क्योंकि प्राइवेट तो इनहेरिट ही नहीं होगा ना। बेस क्लास का सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक में जाएगा, किस में? प्राइवेट में। ये वीडियो देखो पूरा, इसको ग्रास्प करना, ठीक है? वॉच दिस वीडियो आप। ओके, क्लियर इट फर्स्ट। देखें, ये ज्यादा पतला ना दिख रहा है। ओके, हमारे पास एक क्लास है, समझे बात को, क्लास बेस मेरे पास है, क्लास, ओके, और इसको प्राइवेट में मान लीजिए इंट ए है, ओके, और ये पब्लिक हो गया, ठीक है जी। पब्लिक में इसको इंट बी है फॉर एग्जांपल, और एक कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा? बेस क्लास, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ इसमें सी आउट करेंगे। फिलहाल सी आउट कह रहा हूं मैं, क्या? \n, इट्स अ बेस क्लास कंस्ट्रक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज, ठीक है? हम एक ही दिन में सारा ही खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू गो लिटिल स्लो एंड ट्राई टू फिगर इसको इस एंगल से आना, उस एंगल से आना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं माउस ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से है ही नहीं, ठीक है ना? अब मेरा एक डिराइव्ड क्लास है, सो क्लास डिराइव्ड, मैं चाहता हूँ कि इनहेरिट करे, वो भी पब्लिक इनहेरिट करे। क्या करे? पब्लिक इनहेरिट में क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड जाएगा प्रोटेक्टेड में, पब्लिक जाएगा फ्रॉम, ये रहा वो क्लास, और टर्मिनेटर यहाँ पे क्लास का एंड। और ये जनाब, ये जो वाला क्लास है, इसको अपना एक कंस्ट्रक्टर है, दैट्स कॉल्ड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी आउट \n, इसमें एक एरर है, बताओ मुझे क्या है? \n, हाँ एग्जैक्टली, इन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जब आपने रखा, ये आपने प्राइवेट में रखा, कंस्ट्रक्टर कांट बी इन प्राइवेट, फिर तो एक्सेसिबल ही नहीं है, क्योंकि वही कमरे में बंद चाबी हो जाए का मसला। ओके, तो इसे पब्लिक में रखना पड़ेगा ताकि बाहर से एक्सेस हो, तो पब्लिक में रखेंगे इसको। अब जनाब मैं काम क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेस क्लास नहीं बना रहा हूँ, बेस क्लास छेड़ी ना, मैं डिराइव्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। किसका? डिराइव्ड क्लास का मैंने बनाया ओबी। मैंने से डिराइव्ड ओबी, द कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास विल बी कॉल्ड, एंड व्हाट इज देयर इन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। सो मैंने रन इट, व्हाट विल हैपन? कल मैंने बताया थोड़ा सा, जब मैं रन करूंगा प्रिंट क्या होगा? अगर मैं इसको, मुझे सीधे बताऊं, मैं इसको रन करूंगा, प्रिंट क्या होगा? ये कह रहे हैं कि जनाब जब मैं इसको रन करूंगा, पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर आएगा, फिर डिराइव्ड आएगा। हालांकि मैंने बेस क्लास का बनाया ही नहीं कुछ, है ना? हालांकि मैंने बेस क्लास का कुछ बनाया नहीं, मैंने किसका बनाया? अजी जनाब डिराइव्ड क्लास का बनाया, तो बेस क्लास किधर से आ गया? ठीक है, क्योंकि इनहेरिट आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप इनहेरिट कर रहे हो चीजों को। कहां से? जो आप डिराइव्ड क्लास बना रहे हो, आप कह रहे हो कि ये भाई इसका बेस क्लास का जो है वो इनहेरिट होगा पब्लिकली, यानी कि पब्लिक में इसको बी है और बेस है, प्रोटेक्टेड कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है? अगर प्रोटेक्टेड में होता वो भी आता, तो ये सारा उठ के इंट बी और बेस जो सॉरी, अगर कोई मेथड वगैरह होते तो वो उठ के कहां जाते? डिराइव्ड क्लास के पब्लिक में। जब वो बना ही नहीं, जब उसका वजूद ही नहीं है, तो वो कहां से आएगा?
ठीक है। तो पहले तो होता क्या है, देयर इज जो जिसे मैंने कहा सुपर जावा का इसमें हियर यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट, यानी कि जो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि पहली लाइन, इससे पहले कि मैं डिराइव्ड क्लास को बनाना शुरू करूं, दैट मींस हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ क्लास यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, चाहे आप लगाओ या मत लगाओ। अगर आपने नहीं लगाया तो अभी कंपाइलर लगा के देगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर विल बी देयर, सो कंस्ट्रक्टर इज व्हिच कंस्ट्रक्ट्स द क्लास। पहली लाइन ये होनी चाहिए, यू हैव टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि इससे पहले अपना क्रिएट करना चाह रहे हो, यू हैव टू क्रिएट द पेरेंट क्लास, क्योंकि पहले पेरेंट क्लास तो होना चाहिए ना, तब जाके तो माल आएगा ना। इसमें और इसमें फर्क है, यानी कि मैं यहां पे पहले बेस ही बनाता हूं, मैं यहां पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं ओबी, इसको नाम रखते हैं OB1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जब मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये खाली बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसको अपना ए और अपना बी, ये ए जो है और ये जो बी है, ठीक है, उसको ये मिलेगा और उसका कंस्ट्रक्टर होगा ओबी को, किसको, जो नीचे ओबी है। फिर आप बना रहे हो कौन, OB1। उस OB1 को जब बना आपने बनाया, डिराइव्ड क्लास का बनाया, वो पहला काम करेगा बेस क्लास को बनाएगा। हालांकि बेस क्लास तो बन चुका है, बेस क्लास क्या उसको बनाने की जरूरत है अब, नहीं, गलत, उसको बनाने की जरूरत है। वो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो अलग है, वो डिफरेंट है, उसके ए और बी में आप कुछ भी डालो, उसके साथ कोई वास्ता नहीं है इधर, वो इनहेरिट होके नहीं आएगा इधर। अगर वहां आपने सेट डेटा गेट डेटा रखा है, ठीक है, अब ओबी से आप सेट डेटा कर रहे हो, गेट डेटा कर रहे हो, उसके साथ हमें कोई वास्ता नहीं है, वो अलग चीज है, वो ऑब्जेक्ट ही अलग है, उसकी स्पेस ही अलग है, वो अलग मेमोरी में है, उसका अपना ए अलग है, उसका अपना बी अलग है, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे अलग हैं, जितने भी मेथड्स हैं जो भी हैं उसका वो अपना है। लेकिन जब मैंने डिराइव्ड क्लास बनाया, डिराइव्ड क्लास के से हमें एनोनिमस बेस क्लास बनेगा, एनोनिमस जिसका कोई नाम नहीं, एनोनिमस मींस जिसका कोई, इसका तो नाम था ना ओबी बेस क्लास का, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है वो, लेकिन बनेगा और उधर से माल आएगा फिर किसमें, डिराइव्ड क्लास में। बात में आ रही है। तो आपको अब बेस क्लास के साथ छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके रेफरेंस वेरिएबल है OB1 डिराइव्ड का, जो माल आया है वो किधर आया है, डिराइव्ड क्लास में आया है। अब आप उसके साथ काम करो, आपको उसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, लेकिन वो अलग है, वो क्या है, बात में आई। तो पहला काम जो यहां पे करता है, इनिशियलाइजेशन लिस्ट C++ में होता है, जावा में नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे आप नाम के बाद कुछ नहीं लिख सकते, नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वहां पे एक कीवर्ड होता है सुपर, यहां पे हम कोलन मार के जो हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल मार रहे हैं, ऐसे, चाहे आप लिखो या मत लिखो। अगर आपने नहीं लिखा तब भी कंपाइलर ये करेगा, ठीक है। ये करता है ऐसे कि जो ही डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कब होगा डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल, लाइन नंबर किस पे, 21 पे, जब आपने डिराइव्ड का OB1 बनाया, जब आपने डिराइव्ड का क्या बनाया, जो ही आपने डिराइव्ड का OB1 बनाया उसी वक्त डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इससे पहले कि वो डिराइव्ड क्लास में क्या आपने इस कंस्ट्रक्टर में लिखा है, वो पहले कॉल मारेगा किसको, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। सो इट इज जंपिंग ऑन द टॉप, और बेस क्लास का क्रिएट हो रहा है, बेस क्लास, और जो भी वहां पे इनहेरिटेंस के लायक चीजें हैं वो इनहेरिट हो रही है, और वो अभी अवेलेबल है आपके डिराइव्ड क्लास में। इसके बाद वापस आके ये डिराइव्ड क्लास, तो इसलिए पहले ये बेस क्लास कंस्ट्रक्टर नहीं बोल रहा है, उसके बाद डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर बोल रहा है। तो पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर बोल रहा है, उसके बाद इसमें आपने दोनों बार बेस क्यों हो गया है, अच्छा हाँ, वो पहले बनाया था ना ऑब्जेक्ट ये वाला ओबी, और ये जो दूसरा वाला, ये एनोनिमस है। दूसरा वाला क्या है, ये किसने बनाया, डिराइव्ड ने। लेकिन अब एक मसला है, अब इसमें एक मसला है, अगर आप नहीं भी करोगे कोई मसला नहीं, ये कंपाइलर कर रहा है, अगर आप ये नहीं भी लिख रहे हो ना, ये कंपाइलर कर रहा है। लेकिन अगर अब आपके पास, यानी कि अगर आप देखें, अगर आप इसको सारे को बंद ही कर दो, आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं डिराइव्ड क्लास में, ठीक है,
आपने डिराइव्ड क्लास का आपने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, क्या अब बन सकता है बेस क्लास का बेस क्लास? नहीं नहीं, उसको बंद करो मानो, ये मैंने नहीं किया, ये तो अलग चीज है ना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो आपको कंपाइलर ये क्लास डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर बना के देगा, और वहां पे पहली लाइन होगी बेस क्लास, वो खुद ही करेगा, आपको करने की जरूरत यानी कि तब भी चलेगा। अब मसला ये कि जो डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर हम लिख रहे थे वो मैंने बंद कर दिया, खाली बेस क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो जनाब वो जो क्लास है वो तब भी बन रहा है, क्योंकि बनेगा। अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है तो कंपाइलर देगा आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और उसमें वो पहली कॉल मारेगा किसको? बेस क्लास को, और उसको खड़ा करके देगा, और उसके बाद अब मसला दूसरा है। मसला ये है कि अगर जो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है, वो अनपैरामीटराइज्ड, यानी कि इसमें इंट ए कोई वेरिएबल है, अब वहां भी ए था तो मैं भी इंट एक्स रखता हूं, ठीक है, और इंट जी, दो वेरिएबल्स है, क्या है, बात सुना रहे हैं, और ये अपने ए और बी को वो असाइन कर रहा है। कैसे करेंगे इनिशियलाइजेशन लिस्ट से? ए को लगाएंगे कौन सा एक्स, और कामा बी को जी है, वाई नहीं है, ओके। एनीवेज बात सुना रहे हैं। तो अब जब आप ये करेंगे तो अब कंपाइलर हैंड्स अप करेगा, ही विल रेज हिज हैंड्स, और भैया जी तुसी की कर रहा है ना, और सीधे बोलेगा पाजी तेनू की कर रहा है, ना, क्योंकि उसको क्या पता। अब आप बोलोगे नहीं कंपाइलर, कंपाइलर तू ये भी करके दे मेरे को, मैं हाथ बांध के रखूंगा, तू करके दे सारा मुझे, लेकिन उसको मत पता है बेचारे को कि तू कितने वेरिएबल्स भेजेगा। मेरी मर्जी में मैंने दो वेरिएबल्स एक्स और जी पास के, हो सकता है तीन के, दो के, चार के, एक के, पता क्या है कंपाइलर को? पता है अगर नहीं किया था कुछ, कंपाइलर को पता है नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं हो रहा, उसमें कोई दो राय तो है नहीं, लेकिन यहां तो वो पड़ जाएगा ना डाउट में। तो फिर अगर आप बोलोगे नहीं नहीं दो के लिए कर दो, तो फिर अगर तीन के, तो बोलो तीन के भी कर दो, फिर उसको चार के लिए भी करना है, पांच के लिए भी करना है, उसको कहाँ पता है कितने हैं। यहाँ पे कंपाइलर हैंड रेज करेगा, भाई साहब ये अब आपका काम है, ठीक है। आपका काम है कि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन है? बेस क्लास। अगर आपने डिराइव्ड में नहीं रखा है कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर क्या करके देगा? वो देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कॉल होगी किसको? बेस को। वहां तो डिफॉल्ट है नहीं, वहां जो ही पैरामीटराइजर होता है कंस्ट्रक्टर किसी क्लास में, डिराइव्ड की प्रॉब्लम नहीं है, बेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि डिराइव्ड में हमने कंस्ट्रक्टर रखा ही नहीं, उसकी नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है बेस की। जो ही आपने बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर रखा पैरामीटराइज्ड, कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देता आपको, ठीक है। अब आप कहोगे चलो डिफॉल्ट तो होता, चलो पैरामीटराइज नहीं था, डिफॉल्ट होता तो उसको तो कॉल मिल रही है, लेकिन मतलब आप कहते हैं ना क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद यहाँ पे डिफॉल्ट लगा दूं, ठीक, क्या लगा लूं, हमारा काम तो निकल जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिराइव्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, कंपाइलर क्या देगा? उधर किसको कॉल होगी? तो अगर कंपाइलर डिफॉल्ट दे रहा था तो उसने दे दिया होता डिफॉल्ट, तो वो उसको कॉल होती, खेल खत्म था। लेकिन शर्त ये है यहाँ पे कि अगर आपने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर रखा, कंपाइलर हैंड्स अप करेगा, वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट कुछ नहीं देगा, अब आपके काम है, अब ये आपकी जिम्मेदारी। डिफॉल्ट लगाना है लगा लो, खुद ही लगा लो, अब कंपाइलर नहीं लगा लेगा, ठीक है ना। जिसे घर का खाऊं तो अगर म्यून बूझू ठीक એટલે मैं पान छू करूं वहीं अंगो पान नहीं करूं, अब ये खुद करना है। अब क्या करना है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज कीजिए मेरे पास बेस ही नहीं है, मेरे पास अगर बेस है तो फिर भी चलेगा ना। अब मेरे पास यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, तो अब मसला पड़ेगा, अब आपको खुद पहले एक आपको यहाँ पे
कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो कि डिफॉल्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये डिफॉल्ट है चाहे ये पैरामीटराइज्ड है, इट डजंट मैटर फॉर अस, ठीक है। लेकिन पैरामीटराइज्ड कौन है? तो जो बेस क्लास की कॉल थी यहाँ पे, ये मैच करनी चाहिए उसके साथ, है ना, क्योंकि जो हमने कॉल, क्योंकि इससे पहले कि ये डिराइव्ड क्लास को कंस्ट्रक्ट करे, इसको पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्ट करना है। अब बेस क्लास कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? उसके कंस्ट्रक्टर से, लेकिन उसका कंस्ट्रक्टर कैसा है? पैरामीटराइज्ड। तो जो कॉल मार रहे हैं यहाँ पे वो तो कौन सी है? चाहे आप लिखो या मत लिखो, अगर हमने नहीं लिखा तब भी कंपाइलर देगा, लेकिन वो डिफॉल्ट देगा, तो वहां पे एरर आ जाएगा। तो अगर हम रन करेंगे, बोलेगा भाई साहब ये तो पैरामीटराइज्ड है, तो तू तो डिफॉल्ट को कॉल मार रहा है, ये तो सीधी गलत बात है। तो इसलिए क्योंकि वहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, चाहे मैं वेरिएबल्स उसको भेज के, डिराइव्ड को भेज के वो वहां ऊपर भेजूं या कुछ करूं, या मैं यहाँ पे सीधे फिलहाल 2 4 लिखता हूं, अब ये मैच हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब इसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी, अब इसको परेशानी नहीं है, अभी चल गया। क्योंकि अगर आपने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर रखा, तो जो ये सुपर कॉल जिसको मैं कर रहा था जावा वाली, ये आपको करनी पड़ेगी, यानी कि कॉलिंग टू द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा अब, ठीक है, कंपाइलर नहीं करके देगा, ठीक है जी। तो इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डिराइव्ड क्लास कुछ वेरिएबल्स पकड़ रहा है, फॉर एग्जांपल इंट, मान लीजिए डिराइव्ड क्लास को अपने पब्लिक में इंट डी था, ठीक है, ऊपर 2 देने हैं ना, इंट फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ए, इंट बी, इंट सी, 3 वैल्यूज है, तीनों में से बी और सी ये देगा, उसको बी और सी ऊपर भेजेगा, और खुद के इसमें किसमें, जो मेरे पास देखेंगे चलेगा ऐसे, डी में डालेगा ए, डी में क्या डालेगा, ठीक है। लेकिन अब मसला है कि आपको डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसा है? पैरामीटराइज्ड। तो क्या ये कॉल चलेगी? डिराइव्ड OB1, ऐसे डिराइव्ड OB1 इट इज कॉलिंग टू होम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना, ये तो नहीं चलेगा ना। अब या तो आप यूजर से 3 नंबर मांगो, वो OB1 को पिलाओ, या डायरेक्टली फिलहाल मानो मैंने मांगे वो 3 नंबर और पकड़े भी, और मैंने इनको भेजे, जैसे 2, 3, 4, 3 वैल्यूज में दे रहा हूं। अब ये 3 वैल्यूज, 2 जा रहा है किस में, ये जा रहा है इंट ए में, 3 जा रहा है बी में, 4 जा रहा है, इसमें से बेस क्लास को भेज रहा है ये BNC, और खुद को पकड़ रहा है क्या, खुद को पकड़ रहा है 2, ठीक है। इफ आई गिव इट अ गो, पहले देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, कि प्रॉब्लम है कुछ, प्रिंट तो हम कर सकते हैं कभी भी, तो चल रहा है, कोई मसला नहीं है, मैच हो गया ना सारा, मैच हो गया सारा, ठीक है। अब मैंने डिराइव्ड क्लास भी पैरामीटराइज रखा, ठीक है। अब यहां पे जो माल ऊपर से आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या ए आ रहा है? ए नहीं आ रहा है, मेरे पास प्राइवेट नहीं आएगा। बी आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगर मैं यहां पे एक काम करूं, वाइड शो बी कहता हूं मैं, क्या कहता हूं मैं, शो बी, यहां पे सी आउट करूंगा मैं, ये बाहर रखना चाहिए, हाँ, स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर ऑल क्लास से बाहर, फिलहाल मैं दिखा रहा हूं ऐसे, बैकस्लैश n बेस क्लास, हाँ, बेस क्लास b इज इक्वल टू, और ये प्रिंट करना है कि भाई क्या है इसमें b में, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें और हमें ध्यान नशीन करना है कि अगर मेरे पास, देखिए, जो ही डिराइव्ड क्लास बना, डिराइव्ड क्लास पहले किसको बनाएगा, फिर बनेगा डिराइव्ड, और अब यहां से माल, जैसे इसमें क्या क्या था, इसमें ए तो नहीं होगा, ए प्राइवेट में है, वो नहीं हो सकता, बी है, और वाइल्ड शो बी वगैरह है, ठीक है, वाइल्ड शो बी है, ये उठ के चला जाएगा इसमें, है ना, बेस क्लास में, किसमें। तो अब मसला है, क्या ये कॉपी हो रहा है, यानी कि उसका मतलब अगर ये कॉपी हो रहा है, अगर ये
तो जो यहाँ का बी है वो अलग है और ये भी अलग है ना? क्या एक कॉपी हो रहा है? ये देखना पड़ेगा, है ना? हम कहते हैं इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट हो गया, तो क्या कॉपी हो गया? क्या अपना जो पेरेंट क्लास है उधर है वो, है ना? क्या ये दो अलग अलग दो बी होंगे या एक ही बी होगा? अलग अलग होंगे या एक ही होगा? हाँ, कहानी में ट्विस्ट, इसको बोलते हैं कहानी में ट्विस्ट आ गया। बस में आ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर ये दो अलग अलग है, चलो हम साबित करेंगे। आप बोल रहे अलग अलग है, ठीक है। अगर ये अलग अलग है, मैं एक सेट बी रखता हूं बेस क्लास में, एक सेट बी रखता हूं किसमें? यहां पे एक शो भी है किसमें? बेस क्लास में। ऐसे ही मैं दूसरा मेथड रखूंगा, सेम नेम नहीं रखूंगा फिलहाल, उसके बाद हम सेम नेम रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा अगर सेम नेम होगा, ठीक है। वो रखूंगा डिराइव्ड क्लास में। तो जब मैंने, अगर दो कॉपीज है, अगर कॉपीज क्या है, यानी कि उसको अपना है इसको अपना है, तो मैं पहले बेस क्लास के सेट बी से उसको सेट करूंगा डेटा कुछ, जैसे उसमें डालूंगा कुछ 5-10 वैल्यू, उसी की मेथड से शो करूंगा अब क्या है उसमें, वो दिखाएगा ना वो। उसके बाद मैं इसमें करूंगा, किसमें? डिराइव्ड क्लास का एक मेथड है, उससे उसमें डालूंगा वैल्यू, ठीक है। प्रिंट करूंगा लेकिन इस मेथड से, प्रिंट करूंगा किस मेथड से? मेरी बात सुने, देखे देखे, ये बी है ना, अगर ये दो कॉपीज है, यहां पे मैं एक सेट बी कर रहा हूं और एक गेट बी कर रहा हूं। सेट से वैल्यू सेट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल बी में मैंने डाला 9, क्या डाला? अब मैंने यहां पे एक मेथड है, उससे बी में डाला 20, बी में क्या डाला? लेकिन मैं इस मेथड से शो कर रहा हूं बी, क्योंकि इसमें शो करेगा भी तो इसका करेगा ना, ठीक है। अगर उसने 20 प्रिंट किया तो उसका मतलब है ये एक ही बंदा है, ये दो चीजें। आप दरअसल इस बी को एक्सेस कर पा रहे हो इस क्लास के अंदर, कॉपी होके नहीं आया, दो दो चीजें नहीं है, एक ही है, बात में आई। लेकिन अगर इसने 20 के बजाय 9 प्रिंट किया या इस वाले ने, तो फिर ये अलग है वो अलग है, बस में आ रहे हैं। तो देखते हैं, लेट अस सी। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कॉपी नहीं है, ये आपको एक्सेस मिल रही है, चीज एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, ठीक है। तो लेकिन आपको एक्सेस मिल रही है, ठीक है। एग्जैक्टली, ये इनहेरिटेंस असल में कुछ आता नहीं उधर, कॉपी होके एक्सेस मिल जाती है। क्या मिल जाती है? तो प्रूव ये करना है कि कॉपी है कि प्रूव हमें ये करना है कि कॉपी मिल रही है कि एक्सेस, प्रूव हमें ये करना है कि कॉपी मिल रही है कि, देखिए देखिए शो भी में शो हो रहा है ना, इसी तरह से मैं एक मेथड कर रहा हूं वाइड सेट बी, वाइड सेट बी में मैं बी का वैल्यू कुछ सेट कर रहा हूं, बी इक्वल्स टू से 99, ठीक है ना। इस तरह से मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, ये सारा ये मेथड में रखूंगा किसमें? कॉपी डिराइव्ड क्लास में। अब मैं इसको शो बी नहीं रख रहा हूं, शो डबल बी, ओके, और सेट डबल बी, ये डिफरेंट है ना दो, इससे पता चलेगा कि भाई साहब जो डबल बी है वो किसका है। लेकिन यहां पे मैं 22 रख रहा हूं, ठीक है। बी चूंकि किसमें है? पब्लिक में। बी कहां है? आई कैन सिंपली एक्सेस इट, मुझे शो भी बनाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो सीधे एक्सेस होगा। इसके लिए मेंबर मेथड की जरूरत, जो पब्लिक में होता है उसको मेंबर मेथड नहीं रखने की जरूरत नहीं, अगर प्रोटेक्टेड या प्राइवेट में होगा तो उसके लिए। अब फिलहाल रखा हमने तो कोई बात नहीं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डिराइव्ड क्लास बनाया, ओके। मैं कह रहा हूं ob1 डॉट सेट स्मॉल बी, क्या बना मैंने? ओके, स्मॉल बी ने एक मतलब सिंगल बी। अब मैं कह रहा हूं ob1 डॉट सेट डबल बी, सेट डबल बी किसने किया? डिराइव्ड क्लास ने। पेरेंट ने क्या किया? लेकिन एक्सेस कर पा रहे हैं ob1 से ही,
एक्सेस कर रहे हैं किससे? क्योंकि OB1 के पास वो मेथड भी है, ये मेथड भी है, ठीक है ना? OB1 के पास क्या है? ओके, नाउ अगर मैं यहां पे कहूंगा OB1 डॉट शो बी, शो डबल बी, शो, ठीक है, या मैं कहूंगा OB1 डॉट शो बी। तो अगर इन्होंने अलग अलग वैल्यू दिए तो फिर तो दो वैल्यूज हैं, अगर एक ही दिया फिर क्या है? एरर तो कुछ और ही होगा। एरर किसका है? तो बेस का OB में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा OB में चुका है ना ना, OB में क्या प्रॉब्लम? ये नहीं, एरर एरर कुछ और है। OB बेस क्लास का क्यों नहीं बना सकते? हाँ, यहाँ देखिए आप, है ना, पास में आ रहे हैं। अब हमें एक चीज है कि मुझे जो सेट बी है यहां पे, ये रहा सेट बी और ये रहा सेट शो बी। अब जो यहां पे है भाई, इसकी तो एक मिनट इसको बंद करते हैं। डिराइव बेस क्लास में आपका शो भी है और सेट भी है, सेम मेथड दो है। और डिराइव्ड क्लास में भी क्या है? क्या डिराइव्ड क्लास के पास वो शो भी जो पेरेंट से है वो इसके पास है या नहीं? वो इनहेरिट करके आया है कि नहीं आया है? वो इनहेरिट करके आया है ना। और सेट भी जो बेस क्लास का है यहाँ ऊपर, क्या ये सेट भी जो है ये नहीं आया है नीचे? उसका मतलब क्या है? इसके पास शो भी दो मेथड्स आ गई, एक पेरेंट की एक अपनी, एक सेट भी पेरेंट की और एक, जो ही अब मैं रन करूंगा ये बोलेगा भाई साहब मेरे को कॉल किसको करनी है? एग्जैक्टली, बोलेगा ना मुझे कॉल किसको करनी है। पहले तो ये डबल बी तो है ही नहीं, ठीक है ना, हमें दो बार लिखने की जरूरत है नहीं, इसको बंद करेंगे। मैं कह रहा हूं ओबी डॉट सेट बी, ओबी डॉट, अब इसके पास दो सेट भी है, एक अपनी है एक पापा जी दी है, और तुसी किसको चढ़ाएगा? बस में आई। अब मसला ये हो गया कि आपको बुलेट है, तेरे पापा को भी बुलेट है, वो तेरे से ज्यादा शाना था, तो अब जो है उसने तेरे को दे दी बुलेट इनहेरिटेंस में, कहा ले, ले ले हिस्सा हो गया। अब तेरे पास दो बुलेट है, तो मैं कह रहा हूँ बुलेट चला। अब तू कंफ्यूज हो गया, अपनी चलानी है कि पापा दी चलानी है, किसकी चलाएगा, है ना? तो यहाँ कंफ्यूजन है, कंपाइलर बेचारा कंफ्यूज है कि भाई किसको चलानी है। मगर ये तो चल गया यार, क्या मसला है, तो कंफ्यूज हुआ ही नहीं। ये कंफ्यूज नहीं हुआ, ये शाना बंदा है कंफ्यूज, क्योंकि जब इसको बोला चलाओ, इसको क्या बोला, तो इसको पता है कि मेरे को अपनी चलानी है, यानी कि इसको इसे कहते हैं ओवर राइडिंग। क्या कहते हैं? ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन। जब मैं इसको कहूंगा ओबी डॉट शो बी, ठीक है, ये अपनी, पहले देखो इसमें मैसेज क्या आ रहे हैं, इस मैसेज में क्या आ रहे हैं, बेस क्लास में लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया था क्या, इसको लिखो आप डिराइव्ड क्लास, ठीक है, डिराइव्ड क्लास शो बी, ठीक है ना। यहाँ पे जो था ये बेस क्लास बी था, व्हाटएवर। अब जब मैं करूंगा, क्या ये डिराइव्ड क्लास दिखाएगा या उसका दिखाएगा या अपना दिखाएगा? ये कहेगा वो अपने अपना है भाई, भाई साहब हम अपना दिखाएंगे, किसी और का इसे, हालांकि दोनों है इसके पास क्या है, तो ये कंफ्यूजन नहीं है, ये ओवरराइड करेगा। क्या करेगा? इसे एम्बिग्यूटी नहीं बोलेंगे, ये एम्बिग्यूस है ही नहीं, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। इसे ओवरलोडिंग था, इस तरह से ओवरराइडिंग। इफ यू हैव टू मेथड्स, जो अपना आपको है ये ओवरराइड करेगा इसको, उस वाले किसको ओवरराइड किया इसको? अपना है ना डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, वो अपना मेथड दिखाएगा, जो पापा का आया था वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, जो पापा से आया था वो क्योंकि अपने को प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू द इनहेरिटेंस गाय। सो हालांकि सेम नेम थे,
इसके पास दोनों है क्या? इसके पास दोनों है? पहले बताओ, दोनों है कि एक ही है? अब नहीं जाता नहीं, मैं पापा की राइट करूंगा, अपनी नहीं राइट करूंगा, किसकी? अब ये कहता है कि मैं इतना असली पानी चला हुआ मुगल सिंह। अब कैसे चलाएगा बाप की? यहाँ बताओ, ये सेट भी और शो भी बाप का चलना चाहिए, किसका? इसके लिए होना चाहिए बाला, जो होता है शैतान का। वो शैतान यहाँ पे घुसेगा, कहाँ पे? डॉट के बाद बोलेगा पापा जी तेनू ना की है। पापा जी का क्या नाम है? बेस। तो इसको बेस कहो और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा लो, बेस और स्कोप रेजोल्यूशन। तो अब हम कह रहे हैं कि जो ये सेट भी है तो किसकी करेगा? पापा की, ठीक है? या शो भी कहेगा। नहीं, प्राइवेसी खत्म कहाँ है? प्राइवेसी नहीं है खत्म यार, प्राइवेसी कहाँ से खत्म हो गई? आप तेरे पास दोनों है ना, तो कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए ना, कि अगर तेरे को ये वाली दिखानी है, वरना क्या फायदा था? वरना तो जाया होगा था ना भाई। तेरे को 2 बाइक्स हैं, एक पापा की एक तेरी, अगर तू चला ही नहीं पाएगा उसका तो फायदा क्या आ गया ना? सो कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए। वो पुराने हीरो कर देते अमिताभ बच्चन जैसा, दोनों टांगे, एक इस पे एक उस पे। करा बॉलीवुड हीरोची केहती करा। एक दिन मैंने एक मूवी मैंने देखी है पूरी जिंदगी में बॉलीवुड की, वो भी मैं गया बाहर ना, शौक होता है ना, सिनेमा में गया, पता नहीं क्या चल रही थी, वो घुसा किले में। क्या घुसा? 15 मिनट तक तकरीबन गिर रहे हैं किले से ना, ये सब फायरिंग गया ना, घुस गया वो किले में। कम से कम 15 तो एग्जैजरेट हो जाएगा, 5-6 मिनट ज्यादा, मतलब वो गिर रहे हैं, फायरिंग कर रहा है, स्क्रीन पे सिर्फ आ रहा है वो गिर रहे हैं, ऊपर से नीचे। अब मुझे बताइए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो आप। चलो ठीक है, ज्यादा जोक्स हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि this is the funniest class of in a dance लोगों को टफ लगता है, this has become the fun class for you। अगर मेरे को पापा की, पहले देखते हैं पापा हो रहा है एक्सेस की नहीं, कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये देखो, अब इसने बेस क्लास क्या कहा ना, व्हाटएवर, बेस क्लास b इक्वल 99। सो ये बेस क्लास अब दे रहा है, अब पेरेंट क्लास नहीं दे रहा। तो इससे ये होता है कि अगर आपको, क्योंकि कॉपी तो दोनों है ना, इसी तरीके से अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं, क्या है? यहाँ पे इंट भी है, यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर भी इंट भी है। अब बोलो, जब आप यहाँ पे सेट बी कर रहे हो ना, कहाँ पे? ऑलरेडी बी था क्या यहाँ पे? ये बी कहाँ से आ गया ये वाला? अच्छा ये बी, ये वाला बी है ना, ये अपना वाला बी है, ठीक है? अब इसको बी नहीं, कुछ और वैल्यू रखते हैं हम, के रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, यहाँ पे एक के वेरिएबल है, उस के में मैं ए डाल रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल एज इट इज। और यहाँ पे मैं के को इनिशियलाइज कर रहा हूँ 22, और ऊपर में के, इसको, इसके पास भी के ही है, इसके पास भी क्या है? ठीक है ना? अब जब मैं सेट भी कर रहा हूं, मैं के दिखा रहा हूं, मैं कहूंगा शो के। अब क्या कहूंगा? शो के और सेट के। अब पापा नहीं है, तेरा काका है इधर, के से काका। एक मिनट पहले मुझे चेंज करना दो, फिर मैं देखूंगा क्या बोल रहे हैं आप। के, अब उधर भी के इधर भी के, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पे और कहाँ है? अच्छा, इसको सेट के करना है, इसको सटा के कैपिटल सट के करेंगे इसको। अब देखो, उधर भी शो के और सट के, नीचे भी शो के और सट के।
ठीक है, अब बताओ प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं है, ओवरराइड हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, ओवरराइड हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूं जनाब कि मेरे पास के वेरिएबल है नीचे भी और ऊपर भी, जो ये शो के कर रहा है ये इस के को करेगा, और अब ये जो के है इनहेरिट होगा या नहीं होगा, जो बेस क्लास का के है वो आएगा नीचे, लेकिन वहां अपना भी के है और बाप का भी के है, यानी कि दो के होंगे। कितने वैल्यू होंगे के? अब आपको बताना पड़ेगा ये कैसे मैं प्रिंट करूंगा ये। जैसे अगर मैं यहाँ पे वहां बेस वाला होगा, ठीक है। अगर मैं सेट बी कर रहा हूँ, सेट के नाम है असल में, सेट के है, शो के है। अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये कौन सा सेट के करेगा? डिराइव्ड अपना सेट के करेगा, उसमें वो के में क्या डालेगा? 22, ठीक है ना। मैं ये भी करता हूं OB1 डॉट, अगर मैं पेरेंट का सेट के करना चाहता हूं तो क्या कहूंगा? बेस कोलन कोलन, हो क्या रहा है, बेस कोलन कोलन सेट के। अबे किसका के हो रहा है? ये बेस का हो रहा है, ठीक है। क्या वो अलग अलग कॉपी है, एक ही कॉपी है? नहीं, एक ऐसे जो के जो है, नो, वेरिएबल्स अलग अलग दो के है, नाम के है, नाम क्या है? नाम दोनों का के है, लेकिन वो के अलग, ये के अलग। उस के में आप देखें, इसके में 99 डल रहा है ना, इसमें 22। अगर वो सेम होगा तो जो बाद में डाला तो फिर खत्म हो जाएगा ना। देखिए, अगर ओबी डॉट सेट किया आपने किया, उसके बाद OB1 डॉट बेस सेट किया, यानी कि बेस ऊपर वाला किया, तो अगर ये अकेला एक ही के है तो फिर जो पुराना वैल्यू था वो ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि जो बेस वाला सेट के है वो इसमें 99 डालेगा, जो इसने 22 डाला था वो खत्म हो जाएगा, जो इसने यहाँ पे 22 डाला था वो ओवरराइड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो के अलग है, ये दो के क्या है, लेकिन डिराइव्ड के पास दोनों है। एक ही डिराइव्ड के पास क्या है, नाम सेम है, एक पापा का के एक अपना के, एक बुलेट पापा दी एक अपनी, लेकिन दो बुलेट है, एक ही नहीं है, नाम सेम है बट हाँ। तो अगर आप यहाँ पे कहोगे, देखिए OB1 डॉट शो के करोगे, ये किसका के होगा प्रिंट? जो 99 वाला है, 22 वाला है, 22। अगर OB1 डॉट फिर बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हो गया ना यार, बेस के बाद क्या आ रहा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद क्या कहोगे? शो ई तो बैठ तो अगर ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है फिर दो वेरिएबल्स हैं, अगर नहीं दे रहा है तो फिर एक ही वेरिएबल है। फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा है, क्या एरर रहा है फिलहाल क्लिक की। अब देखें, डिराइव्ड क्लास के में 22 है, बेस क्लास के में 99 है, क्योंकि वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। समझ आ रहा है पाजी? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग, इट्स कॉल्ड, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। 7:12 बज गए। Now what you will do is you will hit the gear and disappear. समझ आ रहा है? ये वीडियोस में अपलोड करूंगा इसको, डू वॉच दैट।